पंजाबी रानियाँ है, पंजाबी रानियाँ पुत्रों वे क्यों लड़दे है, पुत्रों वे क्यों लड़दे, मैं ही मर जानिया है, मैं ही मर जानिया। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਘੇਰਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੀ ਲੋਕੀ ਬੇਉਮੀਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਪੰਜਾਬ ਹੋਣ ਦੇ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਨਾ ਮਾਪੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਅੱਧ ਪਚੱਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਨਿਊ ਪੰਜਾਬ ਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਯੂਟੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪੁਆਧ ਦੀ ਧਰਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਬੇਉਮੀਦੀ 'ਚ ਧੜਾਧੜ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ? ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਬਸ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੁਆਧ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਝਾ, ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਰਹੇਗਾ, ਕਿ ਕੀ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਯੂਟੀ ਦਾ ਬਣਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡੇ? ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਇਹਦੇ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਢੋਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਪੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੰਜ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਕਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ हमारे वास्ते हर एक बंदे वास्ते अपनी माँ बोली भी पंजाबी होए चाहे किसी की होर बोली होए बहुत औखा।
ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਹਿਤੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝੀ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਬੋਲ ਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਗਏ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਗਏ ਖੇਲ ਕੇ ਹੋਰ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਲਿਜਾਣੀ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੇ ਘੱਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 75% ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੂँਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ जितना भी समाज है आस पड़ोस बच्चे होर अनपढ़ जिस तरह के भी लोग हैं वो सारा कुछ मेरा समझूंगे। जे मैं बगानी बोली बोलूँगा वो बहुत कुछ नहीं समझूंगे मेरे वास्ते उन वास्ते कुछ मैं तो कहूँगा भी घिरना भी वो होगी भी मैं तिल घोल रख रहा। हाली हमारे बहुत 6-7 एकड़ जमीन हैगी। जमीन हमें ले ली थी ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੀ ਸਾਰੀ ਮਾਰੀ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਕੁ ਸਾਲ ਤੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਪਰ ਗੈਲ ਪੜਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਠੀਕ ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਚਲੋ। ਮੈਂ ਮੇਰੀਆਂ 6 ਭੈਣਾਂ 5 ਮੇਤੇ ਬੜੀਆਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰੀ ਹੈ 56 ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ 56 ਵਿੱਚ ਜਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 47 ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਘੋਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜਦ ਇਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 16 ਚਲੀ ਗਈ ਥੀ ਰਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ शिमला चली गई थी जी। उस वक्त 56 ਵਿੱਚ मैट्रिक करी थी पर मैट्रिक के बाद तो मैं अपने पहला भी काम पीछे लग गया काम पीछे लग गया रहा। मेरे बाप का कहना था भी देख तू कल्ला भी मेरी पहला नीयत थी डिफेंस करनी। अच्छा जी। हाँ उन्होंने मैंने रोक लिया थोड़ा जब भी तू कल्ला आएगा भी हमें हूँ बुढ़े हैं जब मानू भी कोई संभालू। मैं फिर मन का अपना काम शुरू कर लिया। काम तो पहले ही शुरू था। मैं कामयाब रहा खेती भी चाहे जी बात नहीं। अच्छा पूरा कामयाब रहा। पहला उन्होंने की थोड़ी जी सहायता रही फिर मेरे बच्चों ने बहुत काम कराया मेरी गाय। उदों खेती किन्ने एकड़ दी सी तुहाडी? मारी थी कोई 17-18 एकड़ की। 17-18 एकड़। ਉਹ ਚੋਂ ਹੁਣ बस 6-7 एकड़ रह गई। 6-7 बाकी एक्वायर हो गई। हाँ बाकी एक्वायर हो गई। पिंड के विच कई गतिविधियाँ हुई जितना अपना PGI की लाग नूं जंगल है ये सारा साडी जमीन विच मेरे पिंड की जमीन विच है। ठीक है। पहला तो ये नदी चलती थी बहुत उस वक्त असीं इसनूं वरतदे थे डंगर डुंगर चारने वास्ते। फिर पटाला की रौ बन गई बाहरली जमीन हमारी पानी ते बच गई। उसनूं फिर मैं वंड वंडाई करके वो करन लग्या पिंड भी अपनी डंगर डुंगर चारने ते अपनी बाह बहाई विच क्यों थोड़ा जिहा बंडवारियां गए फिर बधदी भी चली जा गल लोड़ पैगी। पर उस वक्त जंगल वाले ने हमारे पर धक्का करना शुरू कर दिया। वो धक्का पिंड वाले ने बहुत एका रखा असीं होण नहीं दिया। 17 साल तो मुकदमा चलता रहा पिंड का। अच्छा जी। मेरे पिंड के मोहतरे जड़े उस वक्त के थे बड़े संजम वाले और बड़े तरीके गल चलने वाले थे। वो मुकदमा भी जीत्या। अच्छा जो धक्का करके कब्जा करने ਨੂੰ फिरते वो पिंड ने नहीं होने दिया। आले दुआले के पिंडा का भी सहयोग रहा होर भी टमाटर जड़े किसी की समझ की मानू लोड़ होए थी उन्होंने भी बहुत मदद करी। असी नहीं होने दिया वो फिर अखीर नूं वो जमीन फिर इनू अक्वायर करनी पई। मैं थोड़ा जिहा डरिया नहीं ला। एक बिल्डिंग खड़ी है इधर 9 मंजिली की बिल्डिंग खड़ी है। ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਅਗਰਵਾਲ ਜਿਹੜਾ 5 ਕਿੱਲੇ ਫਸਿਆ था ना 75-76 करोड़ के कपड़े ਵਿੱਚ अंदर भी रहा सुने तीमी 3 साल की कैद भी हुई ਉਹਨੂੰ उसने आने के और धक्का करिया था। पंचायत भड़ोली भड़ो के
ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਲਈ मालिक थे जोड़े 4.5 कनाल के थे। उसके लाग शमशान घाट चलेगा आबादी डे के बीच। वो शमशान घाट भी बिचे वो कर लिया। अच्छा 11.5 कनाल की रजिस्ट्री करा ली। पिंड वालिया ने कब्जा नहीं होने लिया। उसके बीच हमें मोरी थे 10-11 जने। फिर जब ना कब्जा होने दिया 6-7 महीने कब्जा तकरीबन साल कब्जा नहीं होने दिया। फिर उन्हें 2 पंच होर पट के उन्होंने थोड़ी 3 कमाले की किते रजिस्ट्री कर ली, किते 4 की करा ली। वो फिर जमीन कब्जा कर गए। वो कब्जा वो कर गया। मानू 11 जनानू फिर उन्हें हवालात करवाया। अच्छा प्रशासन वो दबाता रहा जब अडवाणी होम मिनिस्टर था। अच्छा भी मेरी रिश्तेदारी है जी, मेरे प्रतिभा का हिस्सा है जी, इसके पीछे फलाना टिमका। मानू इस गल का शोर नहीं पता है, पर ऐ कह के दबाता रहा प्रशासन। या फिर पैसे कुछ गल भी दबाता होगा। मैं करके वो पूरा कब्जा कर गया। पूरा कब्जा कर गया। मानू मारे पर 11 जनिया पर फौजदारी चली। बहुत दफे लाए हुए थे। 11 साल बाद हमें बरी हुए। 28 मौतां इस 99 से लेकर 2000 ते रख लो, समझ लो 2005 तक 28 मौतां जड़ियाँ हुई वो अपने अपने खेतों में संस्कार करने पे। स्कूलों करनी हमारा पहला भी ध्यान था। मेरे 2 पंचायत पहला जो हरी सिंह सरपंच था उस वक्त ये प्राइमरी स्कूल था पहला, उत्थे पहला था। अच्छा ये हुण सेकेंडरी बन गया ना, जेड़ा हाई बन गया पिंड के लाग वाला। इसनूं अपग्रेड करा के मिडल बनवा लिया था। मिडल तो फिर अपने आप ये सरकार ने रोका सेंट्रेंथ होने करके फिर हाई बन गया। 80 के जोड़ा होता अत्यावाद धक्केगा उसके बीच CRP आन के बैठ गई। धर्मशाला धक्के ते मल ली सारंगपुर दी तरफ। हाँ अच्छा वो धक्के ते तो मैं कह भी नहीं सकता। कुछ शरारती बंदे था वो जे माइंड वाले उन्होंने दरखास्त दे भी उरे CRP होनी चाहिए जी, उरे तो लोग बहुत वो होएंगे, बहुत अत्यावादी हैं फलाना टिमका। उन्होंने मल ली। हालांकि बहुत सिक्का बरूद भी कोई जमा पिया था। जे एक सीख भी गिर जाती तो पिंड नहीं था बच सका। सांझी थवड़े ही नहीं रहा कोई। अच्छा हमें हमारी पेश कोई ना DC पा क्या CC पा या CC की पोस्ट थी, हमें चलते रहे पर हमारी कोई पेश नहीं चली। कोई भी मनने में प्यार ना होया। आखिर हमें हमारा मास्टर जी थे एक अजमेर सिंह, उन्हें मानू दसा तरीका भी तुम्हें इसमें स्कूल खिलाने की गल करो। अच्छा स्कूल की हम दरखास्त ला दी। मैडम तजिंदर कौर फाइनेंस पहला अंडर फाइनेंस थी, वो फाइनेंस सेक्रेटरी बनी थी उसी वक्त। कुछ थोड़ा जा गैल 1-2 बंदों का जान पछाण थी, ऊपर चले गए। उन्होंने उस पर हमें प्राइमरी स्कूल मंगया मॉडल पैरी। मास्टर जी भी गए थे 6-7 बंदे जोड़े पढ़े लिखे थे। हमें मानू तो इन्नी गलबात भी बहुत ही नहीं पूरा वो भी गए थे। जोड़े बंदों की जान पछाण थी उन्हें गए वो उन्होंने पर पैगी टुट गए। अच्छा कहा भी तुम्हें आए तो हैं, तुम्हें प्राइमरी मंग रहे हैं, मॉडल तो मिडल तो मंगो। मैनू मिल गई भी हुण हमारा काम बन गया। पहली तो लेके बच्चे दाखिल होकर 8वीं कर गए। जब थी कोई पार्टीशन कर ली, कभी पलाई ला के कर लेनी, फिर टीना जा के सीमेंट की टीना पा के कमरे जे बना ले मूहरे। 8वीं तक पिंड ने बहुत सहयोग दिया। हुण भी 17-18 पखे उठे के मारे अपने पिंड के दे वे चलता रहा। मेरा ध्यान स्कूलों करनी थोड़ा ज़्यादा था। अपने मुकदमे भी मैं नहीं समझा भी हूँ तो जो कुछ हुआ मैं सच्चाई पर लड़ रहे। हूँ जोड़ा अपने स्कूलों करनी था हमारा काम, जब इन्होंने कहा भी यूटी के बाहर का नहीं दाखिल हो सकता SK सेठिया जी। अच्छा जो इन्होंने स्कूल सरकारी बनाए। हाँ सरकारी होते पहला थे। स्कूल सरकारी होते। इन्होंने ये फैसला किया भी यूटी तो बाहर का बच्चा दाखिल नहीं होने देना।
मतलब पंजाब का भी हाँ हरियाणे का पंजाब भी। कोई भी हो आले दुआले का ओके क्यों ये कलोनियां जिन्हें उरे लियान के बहुत बसा लियां इनू तो वोट बैंक की लोड़ है अफसर इनके जमा ही काबू करे हुए हैं ये तो सानू तुम देख लो भी ये तो उधर नू खुशकने नहीं देंगे अफसर कलोनियां कित्थों लिया के वसाइयां कलोनियां तो पहला मुँह बिठा ले अक्वायर्ड जमीन के बीच उन्होंने क्या वोटां वाटां बना लिया ही उन्होंने अलाटमेंट गाहां करी गई तरह हूँ सारा हूँ भी कर रहे हैं ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ कभी नहीं बिठाया ना ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ हिमाचल क्या यूपी बिहार ज़्यादा ਅੱਛਾ ਜੀ हाँ है उत्तराखंड आलमगढ़ में हैं सारे के हैं पर यूपी और बिहार ज़्यादा हैं 66 ਵਿੱਚ ਜਦ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੰਡੋ ਰਾਜ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਣਿਆ ਇਹ ਵੀ ਵੰਡੋ ਔਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹੁਣ 66 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇ ਇਹ ਵੀ अपनी अपनी विधान सभावां वास्ते मेरी जिहड़ी समझ आ रही है मेरी छोटी समझ है भी मैनू तो यही लग रहा भी अपने अपने विधान सभावां वास्ते इन्होंने यह बंडोरा करवाया पंजाबी जिहड़े लोग हैं ये हरियाणा भी समझो भी पाकिस्तान के विच बहुत हिस्सा ज़्यादा हिस्सा चंगा हिस्सा तो पंजाब पाकिस्तान में चले गया जब पंजाब नूं हुण 66 विच वंडिया कोई इत्थे अलग अलग बोलियां ते थोड़ी थोड़ी बोली जिस तरह मैं पुआधी बोल रहा कोई माझी बोल रहा कोई पोठोहारी बोल रहा कोई जिहड़े उधर से आए थे दुआबे वाले दुआबी बोल रहे हैं इस तरह का ये तो थोड़ा जिहा फर्क है था पर है तो सारी पंजाबी थी जी हुण जे मैं कहाँ भी इस गैल जिहड़ा धक्का हो रहा ये सिर्फ सियासत गैल हो रहा सिर्फ तो सिर्फ सियासत गैल हो रहा जद 66 विच मैनूं वंड लिया जद तो सारा ही पंजाब ही था लाहौर राजधानी थी जब पाकिस्तान वंडने से पहला वो राजधानी हमारी एडजस्ट करने वास्ते पहला शिमले गई थी इसका मतलब भी हिमाचल भी साढ़े नाल था जी हरियाणा भी साढ़े नाल था 52 के बीच जब राजधानी बनने लगी है एक जगह सिलेक्ट करी थी चुनी थी अपने सूझवाना ने सियासतदाना ने कह लो भी ये जगह बहुत रणमीक जगह कि इत्थे अपने पंजाब की राजधानी बनाना है तकरीबन जे हरियाणे पंजाब नूं हिमाचल पंजाब हरियाणे नूं मिला के देखें तो ये सेंटर भी है था बिल्कुल ये राजधानी बनी साढ़े 17 पिंड इसके रिश्ते उजाड़े उन्होंने थोड़ी जी सुविधा मिली थी वो मुसलमाना क्या वीरां क्या जमीनां बाहर पईयां ते घर बाहर पे थे उस वक्त बचे हुए पे थे वो उन्होंने विच उन्होंने अलाट करके वो जगह दे दी वो तकरीबन थोड़े बहुते अजाड़ा तो अजाड़ा ही है पर संभल गए पर उसके बाद उन्होंने गैल भी दोबारा लागे लाने जिस तरह हुण मेरे पिंड बीच उधर रहे पर होर माजरी मूजरी 5 खुले के बीच इत्थे यह जी थोड़ा जमीनां दईयां दियां वो भी अक्वायर हो गई उनका तो दोबारा भी अजाड़ा होया वो फिर बेरहमा ही होया बाकी पंजाब नूं वंड के सब कुछ करिया राजधानी तो पंजाब की बनी जी चंडीगढ़ राजधानी पंजाब की बनी है पंजाब की राजधानी पंजाब में देनी चाहिए थी हरियाणा की राजधानी बननी चाहिए थी जी जड़ी बनाई नहीं गई इसनूं साझा रख लिया कुछ देर वास्ते उस वक्त साझा रखा था वो साझा तो ही रखा था भी हरियाणा की राजधानी हमें बना के दूँगे या उन्होंने बनाऊँगा उनकी मदद करूँगे वो उत्थे अपनी राजधानी कायम करूँगे ये पंजाब की राजधानी पंजाब की रहूगी पर ये करया नहीं गया ये करया नहीं गया हुण होर सूबे भी जुदा हुए हैं झारखंड होया उत्तराखंड होया आलमगढ़ सारे बहुत सूबे जुदा हुए हैं उन्होंने क्या राजधानियाँ दोबारा बनियाँ बिल्कुल मिसाल है एक पर इसनूं क्यों यूटी रखा गया
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬੇਜਾ ਹੀ ਬੜਾ ਧੱਕਾ। साजिश है कि हुण चंडीगढ़ के विच जिन्ने भी लोग बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हां वास्ते ना तो चंडीगढ़ के विच कोई रिजर्वेशन है, ना वो पंजाब विच या हरियाणे विच कुछ अपनी अप्लाई कर सकते। सब तो बड़ी साजिश है फिर इन्हां ने जिहड़ा रख लिया भी पंजाबी के विच तां पढ़िया वा हमें वो करना ही नहीं। मैं इसकी एक उदाहरण दे देवां थानू। एक छोटी नौकरी, बहुत छोटी नौकरी कनेक्टर की नौकरी वास्ते RLA कोल अपनी फाइल लेकर जा रहे हैं बच्चे। उन्होंने बच्चों ने मेरे पास 3 बच्चे आए थे, वो होर भी बच्चे उनकी गैल थे। जेड़ी 10वीं पास करी थी वो पहली भाषा पंजाबी लेकर पास करी थी। RLA ने एक शर्त अपनी फाइल जी जी गल अप्लाई होएगा उसके विच लिखी थी भी जेड़ा बच्चा हिंदी पहली भाषा लेकर 10वीं पास करूँगा उसका कनेक्टर का लाइसेंस बनूँगा, पंजाबी का नहीं बनूँगा। वो जब असी तो साथ विच बैठे थे, वो बच्चे रामनदीप, एक 2 बच्चे मोने भी हैं थे, वो हमारे पाए और रोन लग गए। सांझ का वक्त था, हमें खासे इकट्ठे हुए बैठे हुए बूढ़े बड़े जे यार। हमें उन्होंने पूछा वो कहाँ भी मारा थोड़ा जा उन्होंने नाम सुना था भी ये पंजाबी बार है, थोड़ा जा वो कर रहे हैं अपनी माँ बोली बात भी मारा तो ये लाइसेंस नहीं बन रहा। मैं अज हमें 30 बारी लाइन में नहीं खड़े हैं। मैं उस चीज़ में समझ गया, महा बच्चे ठीक है तू कल नूं लेके ये फाइल मारे पा जा 9 सेक्टर। हमें एक पेंडू संघर्ष कमेटी बनाई भी है भी असी उसके नुमाइंदे उत्थे जाऊँगे। हमें इस बार होम सैकटरी गैर गल करूँगा मैं। हमें अंडर होम नूं मिले थे सब्बरवाल तो उन्होंने मैनू कहा भी थारी मंग जायज़ है, मैं अपने कन्नी ते रिकमेंड कर देवां इसनूं, पर मेरा करे हुआ कुछ नहीं होना, तो मैं कल नूं आ जाओ। हमें होम सैकटरी पर चले गया, पर्ची दी, हमारा टाइम भी मिल गया मानू, और बच्चा भी हमें गैल लिया पता, बच्चा आ गया मौके पर। जब हम अंदर बड़े पहला तो उन्होंने मानू बैठने ही नहीं कहा। अच्छा वो मेरे साथी में ते 2 साल बड़ा, उनके गोडे भी उस वक्त दूर हूँ तो उन्हें गोडे पवा ले। वो मैनू बैठने का इशारा दबा, महा मैं ओके कूनी गए वहाँ बैठना नहीं जाते ही कहते नहीं है। फिर उन्हें फैलां जो कढ़ रहे थे, हमारे कनी निगाह करी, निगाह करके हाँ भाई दसो। हमें वो फैल मूहरे रख दी, वहाँ जी देखो क्या ये पंजाब की राजधानी नहीं है, ये पंजाबियों का इसके विच हक है नहीं, क्या पंजाबी बोली इसके विच रह नहीं सकती। मैं 2-3 सवाल इकट्ठे जे करे, देख के हथ गए फैल दबवा दी, कह दिया मन सारे गए कह दिया भी खड़ो। चलो 2 मिनट हमें फिर खड़े, अखीर नूं फिर 2-3 फैलां कढ़ के मैं कहा भी तुसीं बाहर बैठ जाओ, थोड़ा मसला बड़ा, मैं होरां नूं अटेंड कर लवां। उठ के अपना तुर पे, असीं मूहरे आएंगे, असीं फैल ले गए मूहरे खड़ गए, कुछ नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले। लिफ्ट तक मैं गैल गया, वहाँ जी हमें मानू बिठा लिया, तुसीं बिठा लिया सानू, सुनो टाइम दो कल का दे दो, कुछ नहीं बोले। पुलिस वाला ने मानू खिंच के पीछे कर दिया। हमें चुप कर गए, बाहर निकले, सलाह करी, हमें घरा नहीं आए। वो बच्चे ने भी रोक लिया, तरलोचन के कोल गए, हम सीधे तरलोचन के घर गए। हमें फोन करके घर पूछया, घर पूछ के सीधे गए। उन्होंने फिर एक खबर लाई, खबर लगी दूजे दिन तो उत्थे हरकल मच गया। चंडीगढ़ के भी एक बच्चा तो 8वें दिन संगरूर ते पैदल तुर के आया था रिपोर्ट दे के इस बार वो लाइसेंस वो मारा वो लाइन कट्टी गई, पंजाबी की लाइन पई। फुल्लां कितरा मैं मौजां जिथे माणियां तो अम्मा गौनू देख आण के ए ते थोड़ा भी नहीं जानियां पछाणियां तो अम्मा गौनू देख आण के।
ਮੱਝ ਵੇਚ ਕੇ ਘੋੜੀ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦੇਣੋਂ ਗਈ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਣੀ ਪਈ। ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਸਿਰਨਾਵਾ ਲਾਹੌਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੁਆਧ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਣ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਝਮੇਲਾ ਆਣ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪ ਹੀ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਰਤੀਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਸਲ ਟਿਕਟ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜਿਸ ਬੇਵਸ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚਿਆ। ਅਠਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਾਕ ਆਈ ਵੀ 28 ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੀਕੇ ਚਕਲਾਏ, ਪਹਿਲੋਂ 17 ਪਿੰਡ ਉਜਾੜੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 11 ਉਜਾੜੇ ਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ 52 'ਚ ਉਜਾੜ ਤੇ 17, 66 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਤੱਕ 11 ਉਜਾੜੇ। ਨਾ 17 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਢੋਏ ਮਿਲੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 11 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਛੱਤ ਬਦਲੇ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਉਜਾੜ ਤੇ ਉਜਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਸਰ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਿਟੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਕ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ, ਸਟੈਂਪ ਲਾਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੋਣ, ਲਗਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਜਰ ਲਿਆ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਢਹਿ ਢਿੱਗ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਹ ਲਿਆ, 28 ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ। 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਊਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲੋਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਖੋਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਨਵੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਜੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੰਨੜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੰਨੜ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਤੀ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜੈਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਉਹ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਟਟੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਭਰੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਜਾੜ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੰਡ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਪਣ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਚੌਂਕ, ਸੈਕਟਰ 18 ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਚੌਂਕ, ਸੈਕਟਰ 17 ਦਾ ਚੌਂਕ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜੇ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਚੌਂਕ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੈੱਟ ਚੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਫੋਰਸ ਭੇਜੋ ਜਲਦੀ, ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਜੀ, 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ DSP ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿਆਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਉਹ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਦੂਰ ਸੁੱਟਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਉਜਾੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੁੜਕੀ ਕਲਾਂ ਉਜਾੜਿਆ, ਸੈਕਟਰ 17 ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਚੌਂਕ ਤੇ ਜੇ ਰੁੜਕੀ ਕਲਾਂ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋਊਗੀ। ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਿੰਨੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਆ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਮੋਹਨ ਧਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਤੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਦਾਰ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ, ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਊਂਗਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮਰ ਗਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਹੀ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉੱਠੇ? ਬਾਤਾਂ ਪੁਆਧਕੀਆਂ ਗੀਤ ਮੋਹਣੀ ਤੂਰ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਧਾਂਦਲੀ ਅਤੇ ਮੋਹਣੀ ਤੂਰ ਨੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗਾਇਆ। ਮੋਹਣੀ ਤੂਰ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਇਹ ਸਮਝ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਆਧੀ ਪਛਾਣ ਕਿੰਜ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ 'ਚ ਰੁਲ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਉਜਾੜਾ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਚੁਸਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੋਹਣੀ ਤੂਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਆਈ, ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜਚੋਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਾਤਾ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਆਏ। 5 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 1 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। 1 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੁਕੜੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਮਾਚਲ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਦੀਆਂ ਰਮਣੀਕ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਆਧ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਆਧ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਮੋਹਣੀ ਤੂਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਸੁਣਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਬੋੜ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ।
ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੁਆਧ ਦੇ ਸਿਵੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਆਧ ਦਾ ਰੁਦਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਰਦ ਹੈ। ਨਿਊ ਪੰਜਾਬ ਡੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਮੋਹਣੀ ਤੂਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਹਣੀ ਤੂਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜੋ ਗੀਤ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਤਾਂ ਪੁਆਧ ਕੀਆਂ, ਉਹ ਗੀਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਰ ਲਿਖੀ, ਮੋਹਣੀ ਤੂਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਾਤਾਂ ਪੁਆਧ ਕੀਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਆਧ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਹਣੀ ਤੂਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਹਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ हमारा एरिया धरती कलर होए करे थी, पानी की बहुत कमी होए करे थी हमारे उरे। माझे मालवे और दुआबे की बनिस्बत पुआधियाँ ने अपनी भूगोलिक स्थिति कह लो, मीह पै गया तो फसल होगी जी, मीह नहीं पिया तो 4 मण दाने भी नहीं आते हमारे घर में। वो जिहड़ी चीज़ है उस टाइम जिस टाइम चंडीगढ़ उजाड़िया, वो तो मतलब तमें सोच लो भी निरा धक्का ही था। 6000 केस अज भी हाई कोर्ट में पिया है जी, जिसकी कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई आई नहीं। उन्होंने लोगों को मिलिया कुछ नहीं। कोई कैलड़ ते उजड़ के चले गए, कोई मादड़ियां ते उजड़ के चले गए, कोई किते बैठा, कोई किते बैठा, कोई किसे पिंड दे विच जाके वही बगानगी दा एहसास, कोई मालवे च जाके बैठ गया। वो जिहड़ी चीज़ है हौली हौली हुंदी 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 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂ ਹੇਰਵਾ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੋਚੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਣਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਉਰੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਪਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਖੜੇ ਕਰਨੇ, बड़े बड़े महलनुमा घर बनाने। जिथे तक मेरी समझ है, मैं समझा भी यह ह्यूमन नेचर है। बंदे का अपनिया जड़ा के गैल मोह होना यह कोई ऊपर ते उतरी भी चीज़ नहीं है मेरे हिसाब नाल जी। यह ह्यूमन नेचर है, यह आदमी का, बंदे का सुभाव है। एडम ईव ते ही चले आ रहा मेरे हिसाब नाल तां। बिल्कुल इसनू बदलिया नहीं जा सकता, इसनू दबिया जा सकता, इसनू कुचलिया जा सकता, इसनू टाइम गैल घटाया जा सका जी, पर इसनू दबिया नहीं जा सकता। इसनू जिन्ना दबूगे उन्ना ही बाहर आऊगा। हमारे बजुर्गों ने जिहड़ा वो संताप भोग्या, लोग कह रहे हैं थमें तो कुछ भी नहीं थे, पूरा शहर बनाते, थानू पता लग गया, इब थानू बातां आवां क्या माड़ा चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में क्या माड़ा, थानू रहना आ गया, बहना आ गया, खाना आ गया, पीना आ गया जी, थारा पहनना पचरना बदल गया। मैं कहा सारा कुछ बदल गया। जेड़ा पछाण का मसला हो जाना मेरे हिसाब गल बहुत खतरनाक। ठीक है, हमारे बच्चे अज हमें सूटां ते जीना पर आ गए, हमारे भी उरे सैटरडे कल्चर आ गया, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮਾਰੇ ਉਰੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਤੇ ਛੋਕਰਿਆਂ ਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਰੇ 8 ਸੈਕਟਰ ਮਾ ਸਕੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੇੜੀ ਰੂਟ ਹੈ, ਉਰੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਗ ਲਗਾ, ਉਰੇ ਡਾਂਸ ਹੋਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ जिथे विरोध है उत्थे विकास है। जे विरोध नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। पर विकास की नेरी मां अपने कल्चर ते इन्ने दूर ना चली जाओ भी थोनू बैठ के सोचना लगे भी ओ मारा तो इस तरह होए करे था, हमें तो ऐ होए करे थे। मान करके तो देखो, मान करने वाली चीज़ां हैं, उन्होंने तुसी हौली हौली दबा गए। जिकड़ा हमें छोटे हुंदे रमैन देखण जाए करे थे, पिंड में इक्को घर में टेलीविजन होए करे था जी, तां ओ मारे ग्रों के बाबे जथेदार राय होए थे, जमीना जमूना चंगियां थी उन्होंने टाइम में भी उनके घर में एक ब्लैक एंड वाइट टीवी होए करे था। हमें न्याणे रमैन देखण चले जाया करे थे डर डर के। वो क्या करे थे, हाँ फिर आगे गंद पाण थमें, जे बोरी हैगी है तां आके बैठो उरे, नहीं गंद नहीं पाना उरे, दफा हो जो। मैं कहना ना देखी, बस एक अज की रमैन देख लेने दो। असीं हौली हौली उत्थे बोरियां लेके जाण लग गए, डरन लग गए उन्हां ते पहले ही। ਉਹੀ हाल साडी बोली दा होया। सानू बहुत डर लगे करे था ना भी बाबे राह के किड्डे किड्डे कमरे, किड्डा बड़ा टेलीविजन, चाहे वो छोटा जा ही था, हमारे वास्ते तो बहुत बड़ी चीज थी। क्यों उते पहला मैंने कदे देखी नहीं थी वो चीज।
ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਰੇ ਮਨ ਮਾ ਆਊਗੀ ਵੀ ਨਾ ਬਾਈ ਤਾਈ ਚਾਚੀ ਤਾਂ ਖਿਜੂਗੀ, ਉਹ ਕਹੂਗੀ ਵੀ ਗੰਦ ਪਾ ਕੇ ਜਾਨੇ, ਆਪਣੀ ਬੋਰੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਬੋਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਮਾਇਣ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇਖ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆਓ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਯੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੋ ਪੱਛਮੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, पता नहीं यो कितने थे चीज थोड़ी जी चिणग, या तो हमें गरीब होने का डर मन गए दिखना हो जा है ना भी मैनू तो अंग्रेजी आउंदी नहीं, यो तो उरे तो अंग्रेजी बोलने वाले बैठे हैं। मैं फिर कहूँगी, मैं पहली इंटरव्यू में ही कहा भी मारे अपने पुआध के, मैं नौ नहीं किसी का लंदी, ठीक है, वो भी सुन रहे होने किते बैठे, वो मैनू ऐ कह करे थे जिकना मैं गीत लिख के जाना स्टेज पर जाना, उन्होंने कहना हाँ आ गई कुड़ी, हाँ जी आ गई जी, अच्छा ऐ कर स्टेज पर पुआधी नहीं बोलनी, पूरा बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, सो कॉल्ड वाइट कॉलर्ड लोग, पुआधी में बात नहीं करनी, पुआधी में गीत नहीं गाना, पुआधी में भाषण नहीं देना, कुछ नहीं बोलना, पुआधी में समझ गई। वो जिहड़ी बात है ना उसने इन्ना क झटका दिया मैनू भी पुआध के बौद्धिक कहाने वाले बंदे, पुआध के इंटलैक्चुअल कहाने वाले बंदे जद ओही इस गुलाम मानसिकता में फसे हुए हैं, तो आम बंदा तो फिर बहुत छोटी जी चीज है। मैनू लोग कहा रोने वाली बात नहीं, कई लोगों ने कमेंट करके कही मैं रोने वाली क्या बात है, किसी का कसूर है, किसी का कसूर है, थारे गैल हो गया। अच्छा भी हमें रो भी नहीं सकते, थप्पड़ मारी जाओ, यो कित्थे का रूल है भी थप्पड़ मारी जाओ बंदा रो नहीं सकता, यो तो जग ते 13वीं बात है ना भी थप्पड़ मारो किसी के बंदा रो नहीं सकता, रोने वाली भी क्या बात है, तो मैं गीत में रोए रोने वाली क्या बात है, वो तो हमारी फीलिंग्स हैं भाई, रोने ते कोई रोक लूगा मैनू। वो चीज़ ने मेरे मन पर बहुत असर कराया भी देखो तुसी मानसिकता कित्थे कित्थे, बमार मानसिकता, फेसबुकीए विद्वान, मेरे हिसाब नाल बहुत खतरनाक चीज़ां, वो दर्द नहीं समझ सकते किसी का, वो मजाक चलाओगे, वो कहोगे भी ये किधर नूं तुरे में क्या कर रहे हैं, चंडीगढ़ कोई माड़ी चीज़ है, हमें नहीं कहते भाई माड़ी चीज़ है, पश्चिमीकरण कोई माड़ी चीज़ है, हमें नहीं कहते भी माड़ी चीज़ है, चंगियां चीज़ां हर कल्चर में, हर धर्म में, जिंदगी के हर पक्ष में, जिंदगी के हर पक्ष के दो पक्ष हैं, चंगा भी माड़ा भी, मेरिट्स भी डीमेरिट्स भी, ठीक है ना। उसनों तो मैं ना लो तालिबानियां मंगू भी ऐ क्यों करया, क्यों कर रहे हैं तुम्हें, हमें अपना दुख भी नहीं रो सकते, ये तो गुंडागर्दी होगी ना शरेआम भी तुम्हें गीत में क्यों रो रहे हैं, किसी का कसूर है और चंडीगढ़ बन गया, मतलब हमें रो भी नहीं सकते, कुट्टे हुए हमें रो भी नहीं सकते, अपने हंजू भी नहीं दिखा सकते, इन्ना गुलाम कर देना किसी ने तो माड़ी बात है ना। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗੇੜੀਆਂ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰ 17 ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਓਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਸੀ। पार्क के गैल एक दोजी बाबा मारे उरे दुध का कल्चर है, जमीना जद मारियां बिक गई उरे फिर हमें दुध वाले पासे हो गए, जिहड़ी हमें बरसीन चरी मक्की बाजरा जिहड़ा चलो मक्की तो खाने वाली फसल है, जिहड़ी बरसीन होया थी मारे मचनी होया थी, मचनी नूं तो मैं पता नहीं क्या कहते होंगे, मेरे पुआधे वाले तो समझ गए होने मचनी किसकी बात कर रही है, वो फसलां लाने नूं भी हमारे पास थौड़ नहीं रही, फिर हमें क्या करया मारे उरे का कल्चर बन गया, कक्खां की टालां, टाल पर ते कख लियाने, गाया भैंसा रख लिया, चंडीगढ़ मोहाली में दुध पाना बहुत वधिया बात है, मारे लोगों ने देखो पानी अपनी थों बना लेंदा, मारे लोगों की जमीनां खुस्सियां बाहर चले गए, ठेकियां पर दे दियां, पर वो अपनी जड़ा नहीं छड्ड सके, हमें भी जा सकें थे बहुत मारे गल के चले भी गए, पर उत्थे उन्हां का अज भी पिंड वास्ते जिहड़ा दर्द है, गांव वास्ते दर्द है, वो उन्ना ही वही उसी नूं कहा ना भी पूहेरवा उसी में ते निकलिया वा। हाँ जी। फिर हमारे लोगों ने क्या करया दुध के कारोबार कर ले, दोजी कम्यूनिटी, दोधी कहा जिन्होंने मालवे में, दोजी कम्यूनिटी मारे उरे आ गई, शहरियों को दुध की लोड़ थी, ट्राई सिटी बन गया, पंचकूला मोहाली बहुत पुराना कल्चर है, पुआध का दोजियां के गैल बहुत पुराना संबंध हो गया, वो बाबा दुध पा के 70 सेक्टर के पार्क के खुंजे में उत्थे मैनू दिख नहीं ता रहा भी क्या खड़ा बाबा उरे करदा क्या है, मैं बाबे नूं कहा बाबे उरे तो क्या करा रोज आके, तू सैक तो ढोलियां टंगियां भी हो, थक्या हारिया वा तो दुध पा के आवा कोठियां वा, घर चली जाए कर, उरे तीए चौथे दिन क्या करना वा, तो बाबा कह रहा उरे हमारी मोटर हुंदी थी, यो मेरे पड़दादे का लाया वा पिप्पल है जिहड़ा उरे दवारे जम गया जाड़ी की, मैं घर ते छोटी ढोली मां 5 लीटर वाली मैं पानी पा के लेके आवा, इन्हां का तो मैं पानी भी नहीं पवाना, मेरे पोते ने जाके दस्या भी जिथे अपनी मोटर है थी पिप्पल जम गया, जब मैं देखा वाकई उत्थे पिप्पल का, तो मैं त्रासदी देखो,
त्रासदी देखो उस बंदे की भावनावां। जे हुण तमें उस बंदे नूं कहो रोमा काते है, क्यों रो रहा गीत मां, किसी ने थारी गल धक्का नहीं करिया, क्यों नहीं करिया भाई, मारी गल सरकारां ने धक्का करिया। 6000 बंदे नूं पुछ के देखो ਜਿਹੜੇ ਮਾਦੜਿਆਂ ਤੇ ਕੈਲੜ ਤੇ ਰੁਲ ਰੁਲ ਕੇ ਬੈਠੇ हैं। डॉक्टर गुरमीत सिंह बैदवान PhD करी है जिन्होंने किताब रंग पुआध के, जिसनों पुआध का इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका कहा जा, उनकी माँ का ग्राउंड उत्थे था जिथे 16 सेक्टर जनरल हस्पताल 16 सेक्टर। अंकल कहा भी जद हमें बेबे नूं उत्थे दवाई दवाण जाए करें ते एमरजेंसी के कोल बेबे झल्लिया वांगू गिद्धा पाउण लग जाती। देखो गुरमीत, उरे हमें तियां झूटे करें, तियां आ उरे पिपल होया था हमारा, उरे हमें गिद्धा पाई करें, मैं मैसा लेके ऐ लग जाती आर्ट कॉलेज 10 सेक्टर वाले पासे, या सड़क उरे टोबा होए करे था, मैं अपनी मैसा लेके ऐ लग जाया करी थी, नाले वो रोए थी कहना, नाले वो ताड़ियां मारे थी। अंकल ये बात करते रो पैने, इन्ने ही नहीं उमन हो गए तुम्हें भी, तुम्हें कह रहे हैं भी रो ना। अंत तक मतलब वो अपने खेतां नूं अपने बागां नूं सेम हाल मारा है, सेम हाल मारा है। चलो उन्होंने भुगती वो सारी चीज, मैं मन्ना। जब मारे उरे ट्राई सिटी का मार होगी, उरे लग्या ब्यूरोक्रेट्स नूं, पॉलिटिशियंस नूं लग्या भी उरे ते विकास करो। मारे आले दुआले के पिंड है, जिहड़े आले दुआले के बेल्टां है, जिवें ज्यों ज्यों फैल रहा महानगर ट्राई सिटी फैल रही है, उन्होंने लोगों ने मारियां जमीनां लेनियां शुरू कर दियां। मारे लोगों को यह हो गया भी मारे वर्गा नहीं कोई, जिसने पैसा ना देखा हो, एकदम पैसा मिल जाए उन्होंने, उसका वही जानता जिसने गरीबी देखी हो। हमें गरीबी देखी थी, गरीब बंदे के घर में छप्पर पाड़ के किलोआं के हिसाब गल पैसे गिर जाने, सोच के देखो भी उसकी हालत नहीं समझ सकता बंदा, उस टाइम नहीं पता लग्या था। पर हुण हौली हौली समझ आउण लग्या भी खो क्या गया, क्यों तंग है हमें। अज मारियां बहुत बहुत जमीना मालवे मां दुआबे मां हमें अगां ठेकियां पर दियां हुई, हमें बड़ियां बड़ियां गड्डियां लेकर जा रहे हैं, मानू सरदार कहाँ, वो लोग भी सरदार आए हैं। वो चीज का चौ बहुती देर नहीं रहा मेरे हिसाब गल, बहुतियां नूं होऊगा भी, हुंदा रहे, मैनू इस बात ते कोई फर्क नहीं है, जिन्होंने है मान इसकी चीज का। पर जेड़े बंदे दिल में संजीदा हैं, जज्बाती लोग हैं, जज्बाती होना कोई माड़ी बात नहीं है, बिल्कुल जज्बाती होना अपनी जड़ा गैल जुड़ना कोई माड़ी बात नहीं है, या कोई पाप नहीं है भी तमें मैनू कहें। मैनू इस चीज का बहुत गुस्सा है, इस चीज का भी लोग कह रहे हैं यो कहना ने नवी बात छेड़ी हुई है, ड्रामा छेड़िया वा, यो ड्रामा नहीं है। उरे पूछ के देखो, मैं अपनी बात बतावा, इब मेरा छोकरा कहा तेरा ग्राउं देख के आना, ग्राउं में क्या है, रात मैं अपने ग्राउं में गई, ये नहीं मैं कहती भी बिहारी लोग माड़े हैं, यूपी के लोग माड़े हैं, मजदूर हैं, उन्होंने भी करके खाना, उन्होंने के हालात होर भी माड़े हैं। मारिए हमें वो लोग नहीं जेडे कहूँगे जिकना आम लोग कहते ना भी पंजाब तो भईयां का ही हो गया, उन्होंने भी कुछ खाना है। जे वो ना होंगे जिस तरह हमारे पंजाब का वर्क कल्चर खत्म हो गया, वो लोग हैं जिन्होंने पंजाब की विकास में, पंजाब के विकास में योगदान पाया वा उन्होंने लोगों ने। हमें उन्होंने निखेड़ नहीं सकते भी वो काते आए हैं उरे। जे हमें यो कह रहे हैं भी भईये काते आए हुए उरे, बहुत सारे लोग कहा भईये काते आ गए उरे, फिर बाहर लोग भी जवाब कर सका भी तमें काते जहाज चढ़ी जहाँ +2 करा के तमें काते न्याणियां उधर भेजी जाना। जे वो कहें भी मारे उरे बढ़ने नहीं चाहिए तमें पंजाबी, तो अपना क्या हाल हो जाऊगा समझ के देखो। बिल्कुल मैं बिहारियां का यूपियां की आमद नू माड़ा नहीं मनदी उरे, पर जेड़ा थारा बेसिक कल्चर था वो खत्म हो गया। ये तो मैं मेरे गैल चलो, मेरे ग्राउं की कंधा देखो, पान थुक थुक के ऐ लग रहा जिकना यूपी के किसी ग्राउं में आ गए हो। पीक लाल पीक थुक थुक के पान गैल कंधा लाल करियां पईयां, ओही गलियां जिन्हां में हमें खेले करें थे। मारे ग्राउं का टोबा विकास ने खा लिया, जिथे हमें पिपलों पर पिंगा झूटे करें थियां, जिथे हमें डंगर नड़ाए करें थे, उन्होंने भोमिया पीर कहें करे थे लोग। उत्थे हर एतवार नूं दीवा बालना, चिड़ियां टिक्कियां सिट के उत्थे मत्था टेकना हमारे बजुर्गों ने, हमें भी उस तरह ही लग गए। वो चीज़ अज पूर के
मैनू कोई अफसोस नहीं इस बात में कहने का। खरड़ म्यूनसिपलिटी ने उसके पैसे वट्टे, वो जगह वो टोबा पूरक है, उत्थे हुण बहुत बड़े बड़े कई कई मंजिले फ्लैट बन रहे हैं। ਨਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹਾ, ਤਕਸੀਮ ਦਰ ਤਕਸੀਮ ਹੁੰਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 5 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੁੱਟਦਾ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਤਰਨਾਂ ਬਾਕੀ ਭਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਪੰਜਾਬ ਡੇ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ 1839 ਤੋਂ 1947 ਅਤੇ 1947 ਵੰਡ ਤੋਂ 1966 ਇਹ ਤਾਰੀਖਾਂ ਸਮਝਦਿਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕੀ ਗਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ। रात मेरी अम्मा मेरे सुपने मां आई ती, देखे जी दुआदा ओहो आपे मैं बुलाई ती। अम्मा कहा मनु संते माजरा कमा लिया तो, गैले साफ सुथरी जी हवा भी खड़ा लिया तो, छेड़ दिया उन्हें मेरे दिल आली तार नू, मैं ला के सौखी होण लगी अज उस पार नू। भुल्ला कितरा मैं मौजा जिथे माणिया, तो अम्मा गौनू देख आण के ए ते थोड़ा भी नी जानिया पछाणिया, तो अम्मा गौनू देख आण के। ए चलनी ती ताजी हवा जेड़ी उत्थे चल ली, धरती होइव तां बगाने आने मल ली। भू माफिए ने अम्मा गौ सारा खा लिया, ओ परे जे बंदे आने जाल जा बिछा लिया। अपने ही गौआ मां बगाने हमें हो रहे हैं, ऊपर ते हंसां पर अंदर ते रो रहे हैं। बाबे बैठे ना बना के इवटानिया, तो अम्मा गौनू देख आण के ए ते थोड़ा भी नी जानिया पछानिया, तो अम्मा गौनू देख आण के, अम्मा गौनू देख आण के।